will continue with the next lecture of this is angle and its measurement. So in this, we will discuss about the second part of the angle and its measurement, that is area of a sector. What is this? This is called as this is considered a circle. और सर्कल के अंदर एक सेक्टर बना हुआ है. क्या बना हुआ है? सेक्टर बना हुआ है. ये किसने किया भाई? सेक्टर बना हुआ है. So theta is called as a center angle, r is a radius, then the length of the sector. What is the length of the sector here? Length of sector आप किसको बोलेंगे? Length of sector किसको बोलते हैं अपन? This यहाँ से लेके ये जो बनता है, क्या हो गया? This called as the length of the sector. इसको कहते हैं अपन लेंथ ऑफ द सेक्टर. कुछ आप नोट डाउन करो ये फॉर्मूला. दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर इज ऑलवेज लेंथ ऑफ सेक्टर इज ऑलवेज गिवन बाय r थीटा एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय हाफ r स्क्वायर थीटा. क्या होता है? हाफ r स्क्वायर थीटा. सो आगे बढ़ते हैं. सी द क्वेश्चन हियर. फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल व्हिच सबटेन एन एंगल ऑफ 108 डिग्री. रिमेंबर दैट जो प्रीवियस फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में थीटा जो रहेगा वो थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा. थीटा किस में रहेगा? रेडियन में रहेगा. ये याद रखो. चलो तो ट्राई दिस सम. अब ट्राई करो सम. स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर. थोड़ा सिग्नल का इश्यू लग रहा है. Yes, so see here. Here solve बेटा. Solve करो जिसको सर हो गया. हो गया. वेरी गुड. So हो गया तो उसका सॉल्यूशन भी देख लो. What is the solution of this? Length of an arc where s is equal to what? r theta. बराबर है. पहली बात तो आपको थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा because the formula is valid when theta is in radian. Theta is in radian. उसको रेडियन में कन्वर्ट करो. रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद 108 डिग्री का रेडियन में क्या आएगा? 3 पाई बाय 5 रेडियन आता है. बराबर है. इट इज 3 पाई बाय 5 रेडियन. सो s is equal to 15 into 3 pi by 5. Then the 5 cut with 15. pi और 15 कट हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 9 पाई सेंटीमीटर. क्या आएगा आंसर? 9 पाई सेंटीमीटर. बराबर है. एंड देन एरिया आपको सिर्फ एरिया नहीं क्या बोला है? लेंथ ऑफ आर्क बोला है. दैट्स द आंसर. बराबर है. लेंथ ऑफ आर्क. एनी डाउट इन दिस? प्लीज रिप्लाई दिस. आज कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. मेरे को सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रहा लगता है. मुझे रिप्लाई करो. समझ में आई बात? चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो.
kindly reply me in chat box if you yes fine. So next sum copy कर लो and try this. Next sum copy करके try करो. बच्चा आंसर करो, कुछ आंसर नहीं आ रहा है. Whether you have done this? आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ सर। तो आप लोगों ने किया बच्चों? ट्राई किया, क्या आंसर आया? See this, what is exactly given here? The radius of the circle क्या दिया है? What is the question? Question में clearly mention है. क्या mention है? The radius of the circle is 9 centimeter है. क्या दिया है? Radius of the circle is 9 centimeter. Find the length of an arc of this circle which cut off a chord of a length equal to the length of radius. मतलब आपने consider किया circle. Consider a circle center at origin. Fine. Origin is O. Now radius is 9. So ये OA और OB क्या हो जाएगा? It's a radii of the two same circle. So therefore OA and OB क्या हो जाएगा? 9. Now the chord also equal to the length of radius. मतलब chord AB is also equal to 9 and therefore the triangle OAB is an equilateral triangle. आई बात समझ में? OAB क्या बनेगा? Equilateral triangle बनने वाला है. OAB is what? It is a equilateral triangle. That's very important concept here. AB is 9 given, OAOB 9 as a radii and therefore OAB equilateral triangle बनेगा. तो major angle AOB कितना होगा? What is the major angle AOB? It is 60 degree. We convert this into the radian. 60 को आपको radian में convert करना है because इस formula में जो भी formula में इधर use कर रहे हैं उसमें सब radian में होना चाहिए. Radian में होना चाहिए तो 60 multiply by pi upon 180 that gives you theta का value क्या आएगा? pi by 3 radian आएगा. अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? The radius of the circle is this. Find the length of r. That's it. The length of r क्या होता है? S is equal to r theta. So it is 9 into pi by 3. 3 cancel. Sorry, 9 threes are. So sorry, 3 threes are 9. गड़बड़ हो गई. 3 threes are 9. So ये cancel होके बचेगा क्या इधर? 3 pi. So answer is 3 pi centimeter. Therefore the length of r is equal to how much? 3 pi centimeter. That's the answer. आई बात समझ में? समझ में आया? Please reply in the chat box. Yes, नीति जी ने बोला कि समझ में आया. सम्मन जैन बोले यस समझ में आई बात. Very nice. हम देखो उधर लिखा है. आप ट्राई करो दूसरा सम. चलो दूसरा सम फटाफट ट्राई करो. A pendulum of a length 14 centimeter oscillates through an angle of 18 degree. Find length of the question is find its length of the length of arc. क्या होगा जरा देख लो फटाफट. चलो हेलो सर, आंसर आ गया. आंसर आ गया. वेरी गुड. फाइन. 7 pi upon 5. 7 pi upon 5. ओके देख लेते हैं. ये पेंडुलम है. पेंडुलम का पाथ मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड एज अ पाथ एंड दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ आर्क. बराबर है. इट इज अ छोटा सा सेक्टर बन रहा है. एक थीटा ये सेंटर एंगल बनेगा इधर. तो सेंटर एंगल दिया है 18 डिग्री. ये डिग्री में दिया हुआ 18 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज नथिंग बट रेडियस. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर. मतलब जो दिया है पहला फटाफट लिखो. द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड देन theta is given as 18 degrees. You have to convert into radian. So it is 18 into pi upon 180. So theta का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? Theta is equal to pi by 10 radian. बराबर है. It is pi by 10 radian and therefore
the length of path of the pendulum is nothing but the length of path of the pendulum is nothing but what? It is nothing but what? S is equal to r theta. S is equal to r theta. So S is 14 into pi by 10. So your answer is right. 7 pi by 5. Right. एकदम बराबर है. So that's the answer. बराबर. चलो कॉपी करो फटाफट. Fast. Yes. सारी बात समझ में बच्चों? हाँ सर। Okay. This is very easy one. So move to the next question. Next question. ये कर लिया ना? Next question देखो, try करो. Next question जो है question number 5 आपका textbook exercise 1.2 का next question है. Two arc of a same length. Two arc of a same length subtended an angle 60 degree and 75 degree at the center of the two circles. That is, two different circles are given. The center is 60 degree, another center angle is 75 degree. The length of arc are equal. What is the ratio of the radii? What is the ratio of radii of the two circle? आपको क्या find करना है? R1 upon R2. क्या ढूंढना है इधर? You have to find R1 upon R2 ढूंढना है. आई बात समझ में? R1 upon R2 क्या होगा? That you have to find. चलो फटाफट. Try this if you can. अगर आता है तो ट्राई करो फटाफट भाई. आता है तो ट्राई करो. Yes. क्या हो गया बच्चों? सिर्फ आंसर करते टाइम ही अगर आप माइक चालू करेंगे तो बेटर है. अदरवाइज यू कीप अनम्यूट. बिकॉज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है किसी किसी का. Yes, you are right. Hers एकदम बराबर है. Your answer is correct. R1 is upon R2 is 5:4. Very good. हर्ष ने आंसर किया है. और दूसरे किसी को आता है तो करो फटाफट. चलो. Otherwise I will solve. नेटवर्क है तो थोड़ा. Pi ratio 4. Sir 5 upon 5:4 एकदम बराबर. चलो देखो एकदम राइट है. तो सी दिस. Assume कर लो कि θ1 θ2 are the center angle subtended by an arc. Center R1 is R1 and R2. मतलब R1 रेडियस है तो θ1 उसका सेंटर एंगल है. R2 रेडियस है तो θ2 उसका सेंटर एंगल है. Now it is clearly given that
S1 is equal to S2, where S1 and S2 are what? Length of arc. S1 S2 क्या है? Length of arc है, और उन्होंने बोला है कि दोनों क्या है? Equal है. S1 is equal to S2 दिया है. Therefore आप क्या बोल सकते हो? It is R1 theta 1 should be equal to what? R2 theta 2. Fine. R1 theta 1 should be equal to R2 theta 2. हमको R1 upon R2 चाहिए, तो R1 upon R2 क्या हो जाएगा? R1 upon R2 इधर डिवाइड होगा, R1 upon R2, theta 1 इधर चला जाएगा, मतलब R1 upon R2 is what? Equal to theta 2 upon theta 1. आई बात समझ में? R1 upon R2 is equal to what? Theta 2 upon theta 1. Now basically here in both the cases the angle should be in what? Radian. इसमें आना चाहिए एंगल रेडियन में आना चाहिए, मतलब जो भी एंगल दिया है उसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है. बट जब आप रेशियो फाइंड करते हैं, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना है, तो पाई अपॉन 180 न्यूमरेटर वाला एंड पाई अपॉन 180 डिनोमिनेटर वाला बोथ विल गेट कैंसिल. बस समझ में? तो पाई अपॉन 180 जो है ना, वो बोथ केस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. In both the cases पाई अपॉन 180 will be what? Cancel. क्या हो गया वापस? So either pi upon 180 from both the cases will be cancelled. So क्या बचेगा? Next step में देखो. So R1 upon R2 will be what? 75 R1 theta 2 का value and 60 theta 2. 15 5 and 15 4 are. So we can say the ratio of the radii is equal to what? 5:4. आई बात समझ में? This is very simple. इसको समझ में आया? मुझे थम्स करो तो भी समझेगा. Thumbs up करो please. Yes. Any doubt? Then thumb down. समझ में आया तो thumb up. Okay. Done. चलो तो फिर आगे बढ़े. आगे बढ़ते हैं. Next question on the board. Try this. Next question board के ऊपर है, देख लो. Area वो थोड़ा सा missing है. The area है. The area of a circle is 25 pi square centimeter. Find the length of its arc subtending an angle of 144 degree at the center. Also find the area of corresponding sector. थोड़ा सा बीच में स्पेस नहीं है, इधर जस्ट अच्छे से पढ़ लो. मैं पढ़ रहा हूँ, देखो. द एरिया है, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया. इधर आपको एरिया होना चाहिए. ठीक है? So it should be area here. A missing है. Find the area of a circle given है. फटाफट चलो ट्राई करो बच्चों. Are you trying this? चलो फटाफट ट्राई करो. Try this. The area of circle is 25 pi square centimeter दिया है. Find the length of its arc with subtended angle of 144 degree at the center, and also find the area of sector. दो ही फॉर्मूला है. Length of arc is S is equal to R theta
and area is half r square theta, but theta is in radian. दो ही फॉर्मूला है सेकंड एक्सरसाइज में, एकदम छोटा चैप्टर है. अभी इतना कॉन्सेप्ट के बाद ये चैप्टर इधर खत्म हो रहा है. चलो बेटा जल्दी जल्दी करो. यस किया कुछ? नीरव जी कुछ किया ट्राई बेटा? नीरव में सर आंसर 10. 10 आंसर आ रहा है. हाँ सर 10 आ रहा है. ओके रेडियस 5, काटते हैं थीटा 4, लेंथ 4. लेंथ एंड एरिया दोनों फाइंड करना है. चलो देख लेते हैं फटाफट. Let theta be the center angle, बराबर है. Now it is given that area of circle, so area of circle किया है 25 pi और area of circle का फॉर्मूला है pi r square. तो pi pi कट r square का वैल्यू कितना आएगा? What is r square? इधर क्लियर कट दिया है कि area of circle जो है ना, और area of circle है pi r square, बराबर है. तो pi r square is equal to 25 pi pi कट, तो r square is what? R square is equal to 25, so therefore R is equal to 5 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस आपका इधर दिया नहीं था और रेडियस एक बार मिल गया. थीटा ऑलरेडी दिया है, कन्वर्ट इनटू द रेडियन. 144 को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है. 36 4 जा 36 5 जा, तो 36 के जस्ट आपने कैंसिल किया इधर. 36 4 जा होता है और 36 5 जा होता है. मतलब ये आएगा थीटा का वैल्यू 4 पाई बाय 5 रेडियन. Radius is 5. So what is the length? The length is length of arc is equal to s is equal to r theta pi pi cut. So length of arc आएगा 4 pi centimeter and the area of the sector is half r square theta. So half r square theta मतलब half into 5 square 4 pi by 5. एक pi कट हो जाएगा इधर, 2 भी कट हो जाएगा, तो फिर आंसर बचेगा 10 pi centimeter square, बराबर है. and that's the answer here. That's the answer for this. The length of arc is 4 pi and the area is 10 pi centimeter square. So any doubt in this, please reply me in the chat box if you are doubt. I show thumbs up if you understood everything. Okay, fine, good. चलिए क्या फयाज गुरुवा ने बता दिया कि they understood this one by showing thumbs. चैतन्य बेटा आप ड्राइंग है क्या? नहीं समझ में नहीं आ रहा है. चैतन्य हर्ष ये सब आता है, इजी है, इसलिए शायद नहीं ध्यान दे रहे हैं. चलता रहेगा, ऐसा भी होगा, नो प्रॉब्लम. जिनको ये आ गया है, जैसे नीरव जी ने भी दिखा दिया, समझ में आया ऐसा. चलो तो आगे बढ़े, तो आगे देख लो फटाफट. चलो टेक्निकल इश्यू आ जाए तो बहुत तकलीफ होता है, इरिटेट होता है. यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सम, सो ट्राई दिस. See exercise 1.2 का question number 8. उसमें क्या दिया है? OPQ is a sector of a circle having center at O and radius is 15 centimeter. Radius कितना दिया है? 15 centimeter है. If measure angle POQ is 30 degree
find the area enclosed by an arc PQ and chord PQ. तो पहली बात तो क्वेश्चन क्या दिया है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, इधर एक सर्कल दिया है, उसमें OPQ एक क्या है, सेक्टर है। POQ is given as 30 degree, OP and OQ are the radius and that is given as 15 centimeter। तो PQ एक chord बन रहा है, मतलब ये जो आपका आर्क PQ एंड chord PQ के बीच में जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है उसका एरिया आपको पूछा है। What is this shaded area here? So you see the solution here. Consider a circle with center at O and measure angle POQ as 30 degree, POQ as 30 degree as shown in figure। आपको एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढना है। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं। सो ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OQ। पहले तो PM परपेंडिकुलर टू OQ ड्रॉ करो। फाइन। अब ये PM अगर OQ को परपेंडिकुलर है और ये एंगल 30 है, दैट मींस दिस एंगल इज 90, सो दिस ट्रायंगल बिकम व्हाट, 30 60 90 ट्रायंगल। सो OPM इज 30 60 90 का ट्रायंगल बनेगा, बराबर है। OPM इज 30 60 90 का ट्रायंगल बनेगा। तो साइड अपोजिट टू जो 30 डिग्री है मतलब PM, इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ द hypotenuse होगा। It is always half of the hypotenuse, so that is half of the radius, half into 15, so it is 15 by 2 centimeter, that is PM। now इधर base क्या है, what is the base here, इधर base क्या दिया है, base is OQ is given as 15 centimeter, therefore area of triangle is half base into height। तो बेस का वैल्यू 15, हाइट का 15 by 2, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ कितना आएगा, 15 into 15, that is 225, so it is 225 upon 4 centimeter square, that is the area of triangle OPQ। now we have to find area of sector। so area of sector के लिए क्या है, center angle is given as 30 degree, 30 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, दैट इज यू हैव टू मल्टीप्लाई विद पाई अपॉन 180, दिस इज 0 0 कैंसिल, 3 6 are, so it is pi by 6 radian center angle and area of sector is half r square theta। इसमें r का वैल्यू दिया है 15, so that is half into 15 square into pi by 6। 15 का स्क्वायर होता है 225, so it is 225 pi upon 12, that is area of sector OPQ आएगा 225 pi upon 12। so required area क्या है, required area is area of sector OPQ minus area of triangle OPQ। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको मिला 225 pi upon 12 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 225 pi upon 4। इसमें 225 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा pi by 12 minus 1 by 4। now 12 LCM ले लेंगे तो that is pi minus 3 upon 12। now this is 225 upon 12 bar into pi minus 3 centimeter square, so 225 upon 12 मतलब कितना, so that is 75 by 4 into pi minus 3 centimeter square, so that's the required area, that is area between the arc PQ and chord PQ, so that is the required shaded area, that's the answer for this। आइए बात समझ में। If you have any doubt, please reply in the chat box फटाफट। अब chat box में reply करो कुछ डाउट है तो, otherwise just copy this, अच्छे से एक बार देख लो, review this, fine, then go to the next one। दिक्कत ही है, देखो अभी हाँ सर आ रहा है। क्या आया? हाँ तो
इस टर्म में डायरेक्ट एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आप सॉल्व करने के लिए उतना समय नहीं है। क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज गिवन टू यू। तो इधर लेट थीटा रेडियन विद द सेंटर एंड आर विद द रेडियस ऑफ दिस। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या आएगा, बेसिकली व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ये आपका सेक्टर, ये आपका सेक्टर है, तो सेक्टर में ये वैल्यू आपका आर थीटा होता है, ये होता है आर, ये होता है आर। पेरीमीटर मतलब ऑल बाउंड्री, सो आर प्लस आर थीटा उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, समझा। आर प्लस आर थीटा को हम पेरीमीटर बोलते हैं, लाइक दिस। तो पेरीमीटर बन जाएगा 2r प्लस आर थीटा, 2r प्लस आर थीटा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, बाकी तो आपको ये आ ही जाएगा, बिकॉज नॉर्मली एरिया ऑफ सर्कल दिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल से आप पहला r ढूंढो, बराबर। एरिया ऑफ सर्कल दिया है तो एरिया ऑफ सर्कल से r ढूंढो, r का वैल्यू 8 सेंटीमीटर आया, एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का ये सब इधर आ गया, ये सब है। तो पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस 2r प्लस आर थीटा, 2 कॉमन, सॉरी r कॉमन, 2 प्लस थीटा, और दिया है 56, r का वैल्यू दिया है 8 जो हमने निकाला, दिया नहीं है, वी आर जस्ट पुट हियर, r ढूंढो इधर, तो थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन आ गया, बराबर है। थीटा इज 5 रेडियन, सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ r स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, हाफ r थीटा, and therefore it is r का वैल्यू डालो 8, तो आंसर इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझा बच्चों? हाँ सर। हाँ सर, समझा। ओके सर। ठीक है, अभी टाइम भी हो गया, तो थोड़ा दिक्कत हुआ आज बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, बहुत सारा नेटवर्क मुझे बहुत दिक्कत किया, नेटवर्क और एक वो थोड़ा सा एरर हुआ था, π/6 हो गया था, सॉरी π/3 हो गया था, तो थोड़ा वो टाइप मतलब प्रूफ रीडिंग करने को समय नहीं मिला नेटवर्क के वजह से। एनीवे आई विल सेंड दिस, इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। आप ग्रुप में हो सब लोग? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ में ग्रुप में भेज देता हूँ, ताकि आप एक बार रेफर कर लो इतने जो भी साम मैंने किए हैं, ठीक है सर? हाँ, सर। ओल्ड सम्स के भी पीडीएफ होंगे इसके 1.1 एक्सरसाइज के? जितने मैंने एक्सप्लेन किया वो मैं इधर टाइप किया हुआ है। ओके। अगर और बाकी के सब आप वीडियो में देख सकते हो। यस सर। ओके, तो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, चलो ना, दोनों का पीडीएफ भेज देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, तो पीडीएफ ताकि आपको लिखने को ज्यादा नहीं पड़े, बट आप कोशिश सॉल्व करने के लिए नोटबुक पेन लेके बैठना है। यस सर। आपको नोटबुक पेन लेके बैठना है। आई विल शेयर यू द पीडीएफ ऑफ ऑल दिस सॉल्यूशन हियर। सो नाउ वी स्टॉप एंड वी कंक्लूडेड टुडेस लेक्चर हियर, फाइन। तो इधर अपना चैप्टर खत्म हो रहा है, थोड़ा सा मिसलेनियस एक्सरसाइज के 1-2 सम आप ट्राई करो बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्व करो घर पे। जो नहीं आएगा मुझे डाउट पूछो।